Good morning friends, welcome back to our channel. Already we have started the chapter number 3 pair of linear equation in two variable. In the previous lecture we have talked till 3.4 and that was about elimination method and we had some problem sub. Now we have 3.5 lecture number 7 and it is totally about cross multiplication method. This is one of the best and important method in the if we consider the board examinations. So board examination point of view, this is the one of the best and important multiplication method. So in this method, this is a little bit long, but it's very simple to understand if we get and concentrate here. So what is multiplication, cross multiplication method? So friends, we know in pair of linear equation we have two linear equation in pair. So suppose this is the equation number 1, a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So in this method what we will do? Directly how to solve this kind of method without discussing too much about this topic, we go to directly the topic what exactly we have to learn in this method and what is exactly this method about. So what we will do here, first we will write x, y and constant 1. First we will write these three terms like this way, variable x, y and 1, and we will put equal to sign between these three numbers. Okay, we have already two equations, two linear equation above, but friends remember in this the constant term of this linear equation must be this side, not this side. It means in both equation we have 0 after equal to, it means one side must be equal to. कुछ equation इस तरह से भी होंगे, suppose 2x plus 3y equal to 5 and another equation 5x plus 4y equal to 3. So friends remember this, here we have equal to 5, here we have equal to 3. Whenever you are going to solve this method, you are going to solve any example by this method, what we will do first, we will make the equation constant term. Suppose here minus equal to 5, we will do minus 5 equal to 0 and this will be minus 3 equal to 0. हम पहले उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के ये साइड पे ला देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे. ठीक है, तो पहले इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल टू 0 बनाना है इस तरह से. ये एग्जांपल लिया था मैंने. ठीक है, अब देखिए क्या करना है. जो x कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, x कोऑर्डिनेट, इसके नीचे x वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखना नहीं है. क्या करना है, x के नीचे x का कोफिशिएंट लिखना नहीं है, तो क्या लिखना है, y और कांस्टेंट टर्म, y के दो कोफिशिएंट यहां पे आएंगे और कांस्टेंट टर्म आएगा. राइट, देखिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b1 एंड b2, y के कोफिशिएंट, और बिल्कुल बीच में क्या लिखेंगे, c1 c2. तो x के नीचे देखिए क्या करना है, x का कोफिशिएंट लिखना नहीं है, तो क्या लिखना है, y का कोफिशिएंट ऑर्डर में b1 b2 एंड कांस्टेंट टर्म c1 c2. राइट, अब आया y के नीचे क्या करना है, y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी लिख दिया है हमें, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ a1 एंड a2 these are the coefficient of variable x. तो x के नीचे कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, देख लीजिए. y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं है. अब आया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाले टर्म नहीं होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए, x और y का वेरिएबल होना चाहिए. तो यहाँ पे a1 a2 मैंने लिख दिया है, तो क्या लिखना है, यहाँ पे b1 एंड b2. फिर याद रखना जहां से आपने चालू किया है वहां पे मुकम्मल होना चाहिए. When we have to start till to that topic. Here we have written b1 and b2 and the last we will also b1 and b2. Now what to do next? हमें यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है. राइट, हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे.
जिस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया है उस टर्म का उस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो याद रखना, एक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको कंपलसरी माइनस की साइन रखनी है, जैसे कि हम आगे देखेंगे पता चल जाएगा। देखिए पहला मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखूंगा, x का x ऊपर, नीचे क्या करूंगा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, एक मल्टीप्लाई हो गया। अब कंपलसरी बीच में माइनस रखना है, जब आप दूसरा मल्टीप्लिकेशन करने जाओ तब दूसरे बीच में क्या करना है, एज अ रूल कंपलसरी बीच में क्या करना है, नेगेटिव साइन रखनी है, मतलब माइनस की साइन रखनी है। अब क्या होगा b2 c1, इजी। अब आ गया y के नीचे क्या होगा, y के नीचे c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, बीच में क्या होगा माइनस c2 इंटू a1, ठीक है। अब आएगा कांस्टेंट टर्म 1, इसके नीचे क्या आएगा a1 b2, बीच में माइनस a2 b1, इजी। अब क्या करना है, यहां तो हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए यहां पे अब सब्ट्रैक्शन करना आसान नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे इसके आगे, यहां पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे। अब x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है कांस्टेंट के साथ, इस वजह से आपको एक आंसर मिलेगा, जैसे कि ये और इसको कंपेयर करेंगे 1 एंड दूसरे में y और इसको कंपेयर करेंगे। तो जब आप x कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, सपोज इन दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड व्हेनेवर वी कंपेयर y विद कांस्टेंट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके। तो अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स वी गो विथ एग्जाम्पल, ओके। Okay friends, look at the question number 1, example number 2. We have to solve these two pair of linear equations by cross multiplication method that we have just discussed. But by example, it's very easy to understand and your all the doubts will be resolved in this topic. I hope that, okay. So ये दो इक्वेशन है, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें सॉल्व करना है। तो जैसे x का कोफिशिएंट जो है हमने सबसे पहले क्या लिखा था, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तीन टर्म्स इस तरह से लिख दिए थे सबसे पहले। अब क्या करना है, x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वी डू नॉट हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x बिलो x। तो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। सो कोफिशिएंट ऑफ y विल बी 1 हियर, देखिए y के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे y के आगे क्या है 2 है। एंड कांस्टेंट टर्म देखिए -5 एंड -8। याद रखिए फ्रेंड्स, जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ ही लेना है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म है पूरा इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 बना देना है। ये आपको एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये भी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है अंदर ले जाके माइनस कर देना है और इक्वल टू 0 बना देना है। तो मैंने इक्वल टू 0 बना दिया, ठीक है। अब y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए कांस्टेंट एंड x वेरिएबल। तो कांस्टेंट मैंने लिख दिया है, x का क्या होगा 2 एंड 3, ओके। अब कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाले नहीं होने चाहिए, तो क्या आने चाहिए x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट आने चाहिए। तो y के मैंने लिख दिए है 2 एंड 3, x के लिखे, y का क्या होगा 1 एंड 2। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर क्लास दैट जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो 1 2 है, और एंड में भी क्या आना चाहिए 1 2। यहाँ तक हो जाता है, इट मीन्स वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शंस, ओके। अब हमें पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, और इसका इसके साथ करेंगे। जहाँ मैंने एरो लगाया है उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बीच में क्या रखना है माइनस रखना है, वो भूलना मत, ओके। तो x के नीचे क्या होगा, देखिए 1 के साथ -8 का मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होगा -8
1 इंटू -8, बीच में कंपलसरी मैंने बोला था माइनस रखना, तो माइनस लिख दिया मैंने। अब 2 इंटू -5 कितना होगा? -10। क्या होगा? -10। ओके, अब इक्वल टू y के नीचे देखिए 5 इंटू 3 दैट विल बी -15, बीच में कंपलसरी माइनस, 8 2 16, बट माइनस है तो -16 रहेगा, इसलिए ये -16 इक्वल टू 2 2 4 एंड बीच में क्या होगा? माइनस होगा एंड 3 1 3। इजी। अब यहां देखते हैं x के नीचे क्या आएगा, देखिए -8 + 10, y के नीचे क्या होगा? -15 + 16। समझ में आ रहा है ना? इट्स वेरी सिंपल। -15 माइनस प्लस 16 यहाँ पे इक्वल टू 1 के नीचे 4 - 3 का मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट एग्जांपल छोड़ दिया था, आपको ये कह के कि आपको अब कंपैरिजन करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए x को 1 कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है और फिर y को 1 के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये -8 + 10 कितना बनेगा? 2 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 1 बनेगा और दिस इज 1/1। अब मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है। नाउ x/2 = 1/1 एंड y/1 = 1/1। इस तरह से मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था कि x/2 जो x कोऑर्डिनेट x वाला जो टर्म है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, फिर y वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, राइट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 × x क्या होगा? x एंड 2 × 1 दैट विल बी 2। एक आंसर मिल गया x का। सिमिलरली यहाँ पे y बन जा y एंड 1 बन जा 1, दिस इज 1। तो हमें इसमें x और y दोनों का आंसर इजीली हमें मिल गया है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। कैसे करना है? तो आपको पहले तो जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसको इक्वल टू 0 बना देना है। ठीक है, इक्वल टू 0 बना लिया। अब क्या करना है? आपको x = y = 1 लिख देना है इस तरह से। फिर क्या करना है? x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, तो इक्वेशन में क्या बचा होगा? y और कांस्टेंट बचा होगा, तो y का कोफिशिएंट लिखो 1 × फिर बाजू में कांस्टेंट टर्म लिख दो। बिल्कुल सेंटर में लिखना है x और y के बीच में, क्योंकि ये इसमें भी काम लग जाए। तो -5 -8 लिख दिया। y का नंबर आया तो क्या करेंगे? y का कोफिशिएंट इसके नीचे नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो y के नीचे कांस्टेंट आ गया है तो खाली x का लिख दो 2 and 3, 2 and 3 y के नीचे आ गया। अब आया 1, तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो 1 के नीचे 2 and 3 कोफिशिएंट ऑफ x तो आ गया है, क्या लिखना है? सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 1 and 2। और लास्ट में ये भी चेक कर लेना है कि जहां से चालू किया था वहां पे पूरा हुआ। यस, तो 1 2 से चालू किया था 1 2 पे पूरा हो गया, सो आप सही जा रहे हो। अब क्या करना है? x के नीचे चल रहा है तो x बाय आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है -8, और फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन करने जाओ तब बीच में कंपलसरी माइनस रखना है फ्रेंड्स, ये मत भूलना। अगर ये भूल गए तो आपका आंसर सही नहीं आ सकेगा। तो -8 फिर कंपलसरी फॉर्मूला का माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन -10। सिमिलरली यहाँ पे -15 माइनस रूल फॉर्मूला का, फिर -16, फिर यहाँ पे 4 - 3। आप सिंप्लीफाई कर दो फिर, तो x/2 देन y/1 देन y/1/1। यहाँ आ जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है? दोनों वेरिएबल को 1/1 रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना है। इट मींस x/2 के साथ 1/1 यहाँ लिख दिया, मतलब वेरिएबल x के साथ कांस्टेंट लिख दिया, फिर y और कांस्टेंट ये लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल हैव द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y। तो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड आई होप यू गॉट इट एंड इट्स वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू। Okay friends, look at the example number 3 of same exercise 3.5. We have another example. This is about cross multiplication method.
ओके, सो सेम वे क्या करेंगे, अगेन वी विल राइट x इक्वल टू y इक्वल टू 1. Same way we have discussed in previous example. Again we will do. x के नीचे क्या करेंगे, x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, y और कांस्टेंट टर्म. और देखिए एग्जाम्पल की इक्वेशन भी देखिए, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, याद रखना दोनों इक्वेशन इक्वल टू 0 होने चाहिए, जैसे कि -7 इक्वल टू 0 एंड -15 इक्वल टू 0. ओके, सो x के नीचे क्या आएगा, y और कांस्टेंट, सो -3 एंड -3 और -7 -15. ठीक है, सॉरी इसको बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं तो एक ही बार लिखना पड़े, -7 -15. ओके, नाउ y के नीचे क्या करना है, y का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, x और कांस्टेंट आना चाहिए. तो कांस्टेंट मैंने लिख दिया है -7 -15, तो क्या लिखना है, 1 and 3, आएगा 1 and 3. ओके, now we have constant, so what we will do, we will write the coefficient of x and y, not constant term. So 1 or 3, these are the coefficient of x, just we will write the coefficient of y, this is about -3 and -3 we will write by this way, -3 -3. okay, पहले भी मैंने कहा था कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो जो कोफिशिएंट के साथ -3 उसी तरह वहां पे आपका मुकम्मल होना चाहिए -3 -3. इट मीन्स यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शंस. ओके, अगेन वी हैव टू, वी विल मल्टीप्लाई, इट इज वी विल हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय दिस वे. ठीक है, लेट्स वी मल्टीप्लाई. सो x बाय, देखिए बहुत माइनस है यहाँ पे, आराम से मल्टीप्लिकेशन करना. देखिए -3 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस एंड 15 3 जा 45, प्लस 45 यहाँ आएगा. ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने बोला था कंपलसरी बीच में माइनस रखना है, चलिए ये माइनस लिख दिया, फॉर्मूला का माइनस आ गया. अब देखिए 3 इंटू 7, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 7 3 जा 21. ठीक है, सिमिलरली वी हैव y बाय -7 इंटू 3, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा. 7 3 जा -21 रहेगा ये. ठीक है, बीच में क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला का कंपलसरी माइनस डाल दूंगा. नाउ -15 इंटू 1, दैट विल बी -15. ओके, नाउ 1 बाय 1 इंटू -3, दैट विल बी -3, फॉर्मूला का माइनस, 3 इंटू -3 -9. और जितने भी माइनस नंबर आप मैथ्स में लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में ही लिखिए कि कभी प्लस माइनस की गलती ना आए आपकी. तो क्या ब्रैकेट होगा तो आपको पता चलेगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक साइन में जो चेंज होना है वो हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ चलता है, x क्या होगा, 45 माइनस 21 कितना होगा, फटाफट आंसर कीजिए. 15 9 24, 5 माइनस 1 4 and 4 माइनस 2 2. ठीक है, 45 माइनस 21 दिट विल बी 24. y बाय, देखिए अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, तो -21 माइनस माइनस प्लस 50 इक्वल टू 1 बाय -3 प्लस 9. ओके, ये तो सिंप्लीफाइड हो ही चुका है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं x बाई 24. नाउ y बाय 21 में प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़े नंबर की साइन डालेंगे. तो 21 में से 15 निकालो, कितना बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन -6 आएगा. ठीक है, 1 बाय -3 प्लस 9 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो आंसर आएगा उसके आगे कौन सी साइन होगी, प्लस की होगी, तो ये कितना होगा, +6. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैंने देखिए वो भी एग्जाम्पल मैंने छोड़ा था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इन प्रीवियस लेसन्स एंड प्रीवियस क्लास. हियर वी हैव टू कंपेयर द x कोफिशिएंट विथ कांस्टेंट, लेटर ऑन वी विल कंपेयर y विथ कांस्टेंट. सो दिस सिनारियो विल बी लाइक दिस, x by 24 equal to 1 by 6.
x बाई 24 को किसके साथ कंपेयर करना है, कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो दिस विल बी 6x, 6 इंटू एस 6x एंड 24 इंटू 1 दैट विल बी 24. सो नाउ x इक्वल टू 24 बाई 6, तो x इक्वल टू 24 बाई 6 कितना होगा, x इक्वल टू 4. Similarly, we will compare y coefficient with constant. This will be y by minus 6 equal to 1 by 6. Okay, this will be 6y, this will be minus 6. So y equal to minus 6 by 6. So y equal to minus 1. Okay friends, I hope you got this all entire method. What to do in cross multiplication method? First, we will have a pair of equations like this. But remember, in this equation must be equal to 0 like this. Both are, look at here, both the equations are equal to 0. Later on we will write x equal to y equal to 1. Below x we will write the coefficient of except x, it means coefficient of y and constant. Below y we will write coefficient of x and constant, and below constant we will write the coefficient of variable x and y. Next we will have cross multiplication. Remember, after one multiplication we will use minus sign between both term like this, minus here, minus, this is also minus. Next, simplify the entire method like this, subtraction, addition, whatever we have we will do that. We will get 24 here like this, minus 6 here 6. Next we will compare x coefficient with constant by this way and we will get the value of x. And later on we will compare y with coefficient with constant term by this way and we will get the value of y. So by this way we will have the value of x and y. Okay, thank you.